Welcome Poonam for the lecture on digestive system in anatomy. Start. Thank you, sir. We're going to see the digestive system. In that, three phases are included: digestion, absorption, and elimination. How exactly it happens, we'll see slide by slide. First, digestion. What exactly in digestion happens? There are again two steps: mechanical digestion and chemical digestion. In mechanical digestion, what happens here? Breaking down of food. How exactly happens in each organ, like stomach, intestine, and all, and how enzymes act on the food, and how food gets break down into a smaller part. Then includes mastication till the churning in stomach. ये कहाँ से कहाँ includes mastication means chewing of the food to the stomach. Stomach के यहाँ पे churn होता है वहां तक. Then है chemical digestion. What happens here? Conversion of molecules to macromolecules to micromolecules. बड़े बड़े पार्टिकल्स से छोटे छोटे पार्टिकल्स तक उसका कैसे कन्वर्जन होता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, that comes in chemical digestion. Then hydrolysis means water plus digestive enzymes, वो कैसे act करते हैं वो सब इसमें हम देखेंगे. Then है movements, mouth to stomach, how exactly food passes. Like mouth में हम food लेते हैं, उसको chew करते हैं, फिर उसको हम swallow करते हैं through pharynx. Then it passes through the esophagus and then stomach. When it goes to the stomach, it start to churn around 2 to 3 hours, depends upon which type of food you have taken. If it is like carbohydrate kind of food, it takes less time, and like protein and fat kind of food, if you are taking, it takes more time. And what movement happens here? The peristalsis movement, like involuntary wave-like movements. Wave-like movements, जैसे सांप move करता है, kind of that carries food through the digestive tract. ये धीरे धीरे माउथ से esophagus से stomach से स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे फूड पास करता है, अपने आप नहीं चला जाता जब तक ये वेव लाइक मूवमेंट्स नहीं होते वहां पे. अगर ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होते तो फूड पास नहीं होगा फिर. ओके. देन है एब्सॉर्प्शन, प्राइमरीली इन द इंटेस्टाइन्स आफ्टर डाइजेशन. ये कहाँ पे हो जाता है? मेनली इंटेस्टाइन से शुरू हो जाता है डाइजेशन. goes into the blood and lymph capillaries. Absorption जो भी किया गया है फूड का, वो ब्लड में एंड लिम्फ कैपिलरीज में चला जाता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स आते हैं. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं माउथ, देन फैरिंग्स मीन्स थ्रोट. इसमें भी 3 टाइप्स के फैरिंग्स मीन्स इसके वाइज कहाँ पे है, उसका प्लेस कहाँ पे है, उसके हिसाब से उसके फिर से 3 टाइप्स है. वो कैसे हम देखेंगे. दिन है इसोफेगस which is shown in the diagram, the green color one, that is esophagus. उसको हम अन्न नलिका भी जो अन्न नलिका बोलते हैं. then है stomach, the red color one. then है small intestine, pink color one, and then large intestine, brown color, and then rectum, the last part of the large intestine. Okay, so ये सारे हो गए मेन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट जहां से फूड पास होता है. लेकिन एसेसरी ग्लैंड्स और एसेसरी ऑर्गन्स भी इसमें आते हैं, जैसे कि लिवर में फूड डायरेक्ट पास नहीं होता, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है. और फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड, जो माउथ में रहते हैं. जो फूड हम च्यू करते हैं उस टाइम वो सलाइवा मिक्स करते हैं उसमें. ओके, वो है सलाइवरी ग्लैंड्स. देन लिवर, देन पैनक्रियास जो येलो कलर का दिखाया है. ओके, एंड लिवर के नीचे जो डार्क ग्रीन कलर का है, दैट इज गॉल ब्लैडर. लिवर बाइल सिक्रेट करता है और स्टोर करता है गॉल ब्लैडर. वो सब पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर का जो भी सिक्रेशन है वो डिओडिनम, दैट इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, उस वहां से
स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल पार्ट जिसको डिओडिनम बोलते हैं वहां पे पॉर करता है, देन उसका फर्दर प्रोसेस डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन का शुरू हो जाता है। दिस इज क्लियर? कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ है? माउथ, pharynx, esophagus, stomach, large intestine, sorry, small intestine, large intestine, and rectum. Clear? Yes. Ma'am, pharynx is the part of esophagus only. Not esophagus. It's initial part of esophagus. It's connect the mouth and esophagus. Okay, जो okay, हम okay. हाँ बोलते हैं उसको. Menon sir, Pranita is waiting. Wait, I have to accept her. Yes. I'm opening in the tab, so I can't see who is getting asking for permission. Okay, okay, I will. Just inform me if anyone is waiting. आता केलं join. Yes. We'll start now. Yes. 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 Then we'll see about mouth. Mouth includes teeth, tongue, and salivary glands. Okay. Teeth mechanically break down food into small pieces. Tongue mixes food with saliva, contains amylase, which helps to break down the starch. जो स्टार्ची मटेरियल रहता है, जो कार्बोहाइड्रेट रिच वाला जो भी प्रोडक्ट रहेगा आप खा रहे हो, तो उसमें अमाइलेज मिक्स हो जाएगा जो सलाइवरी ग्लैंड में कंटेंट रहता है, तो उससे फूड वही से स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन का प्रोसेस वही से शुरू हो जाता है, माउथ से ही, वो पेट में जाने के बाद नहीं शुरू होता है। इसलिए फूड को च्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आप निगल गए तो डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि फर्स्ट डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? अपना माउथ से, जो सलाइवा उसमें मिक्स होता है। इसलिए बोलते हैं अच्छे से 32 टाइम्स वी हैव टू च्यू टू मिक्स द सलाइवा प्रॉपरली, which helps to digestion properly. Then यहाँ पे epiglottis देखेंगे हम, एक मिनट, एक मिनट, जहाँ पे फर्स्ट जो डायग्राम है वहां पे आप इपिग्लोटिस देख सकते हो, ओरोफैरिंग्स के नीचे ये वाला। कैन यू सी? मेरा ये भी नहीं चल पाता इसमें। नहीं, बहुत बारीक है, नहीं दिख रहा। नाउ यू कैन सी योर epiglottis? Yes. हाँ, yes. Okay, just look. I'll try. Can you see it here? Yes. Yes. Yes, ये ma'am. epiglottis जो रहता है यहाँ पे, ये क्या होगा कि जब हम फूड निगलते हैं तो ये एपिग्लोटिस ऐसे यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और यहाँ से पीछे से इसोफेगस में से फूड नीचे जाएगा। और अगर सांस ले रहे थे ऊपर, सांस लेते हैं तब ये ऐसे ही ऊपर रहेगा, ताकि हम सांस ले रहे तो यहाँ से अपने ट्रकिया में चला जाएगा। दिस इज वे फॉर ट्रकिया एंड दिस इज वे फॉर इसोफेगस। जब ये क्लोज हो जाएगा ऐसे, तो फूड इसोफेगस से नीचे जाएगा। ये ओपन रहेगा तो ट्रकिया से हवा अंदर ट्रकिया में चली जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे इसोफेगस लिखा है, ये वाला ट्रैक जो है, एंड दिस इज ट्रकिया जहां से हवा जाती है ना? दिखाई दे रहा? Yes, ma'am. यस, दिस इज एपिग्लोटिस, दिस वन। Epiglottis is a flap-like structure at the back of the throat that closes over the trachea, preventing food from entering it. It is located in the pharynx. This all is pharynx. इसमें भी कैसे है? ये नोज के लाइन पे जो रहेगा pharynx, ये पार्ट जो आएगा इसको बोलेंगे, एक मिनट, इसको बोलते हैं नेजोफैरिंक्स, क्योंकि ये नोज के
लाइन पे है, जो माउथ के लाइन पे ऐसे आएगा, ये वाले पार्ट को बोलेंगे ओरोफैरिंग्स, और जो नीचे आएगा लैरिंग्स, जहां पे गला बोलते हैं, इसको बोलेंगे लैरिंगोफैरिंग्स। ऐसे थ्रोट के 3 पार्ट रहते हैं। दिस इज नैरोफैरिंग्स, this is oropharynx, and this is laryngopharynx. Okay, clear? Then we'll see the esophagus. अब esophagus कितना लंबा रहता है? How much long it is? 25 centimeters. Okay, green mark. Can you see here? Can you see my this mouse point? No, ma'am. Oh, okay. Okay. Then कहाँ पे रहता है? जैसे कि मैंने अभी बताया पहले वाले स्लाइड में, पहले ट्रकिया था, उसके पीछे क्या था? इसोफेगस था। डायग्राम में बताया ना पहले वाले, lies behind the trachea and pierces the diaphragm ending in the stomach. यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे डायफ्राम रहता है, मसल का एक फ्लैप रहता है, यहाँ पे लंग्स एंड हार्ट रहता है, उसमें से बस ये इतना ही ये पियर्स कर पाता है, बाकी ये क्लोज रहता है डायफ्राम पूरा। ओके, बस डायफ्राम को छेद के नीचे आता है ये इसोफेगस, नहीं तो बाकी ये क्लोज रहता है। और किसके पीछे रहता है? ट्रकिया के पीछे रहता है, बिहाइंड द ट्रकिया। सामने ट्रकिया रहता है जो लंग्स तक हवा को पास करता है, ये स्टमक तक जाता है जो फूड लाता है स्टमक में। इसके फंक्शंस क्या है? सीक्रेट म्यूकस, म्यूकस सीक्रेट करता है। जैसे सलाइवा अपने माउथ में सीक्रेट होता रहता है, वैसे इसोफेगस में म्यूकस सीक्रेट होता रहता है, ताकि आप फूड जो स्वेलो कर रहे हो वो प्रॉपर से बिना किसी परेशानी से नीचे स्टमक तक जाए। अगर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा सूखा सूखा आप जो खाते हो पूरा अटक जाता है गले में या चेस्ट में अटक जाता है, लगता है ना आपको चेस्ट में अटका हुआ है, क्योंकि वो सूखा सूखा एकदम जब खाते हो तो म्यूकस जितना है उतना काफी नहीं होता, उसको वेट फॉर्म में ही खाना होता है हर फूड को, इसलिए प्रॉपर से च्यू करके जब खाते हैं तो प्रॉपर से निगल पाते हैं। तो ये भी म्यूकस यहाँ पे सीक्रेट करता है ताकि फूड अच्छे से स्टमक तक पहुंचा पाए। देन मूव्स फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक यूजिंग मसल मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स मींस वेव लाइक मूवमेंट्स। ये पूरा वेव जैसे मूवमेंट करेगा और फूड जो गले में है उसको धीरे धीरे नीचे स्टमक में लाके छोड़ेगा। ओके, क्लियर? दिस इज क्लियर? इसोफेगस। Yes, ma'am. Then we'll see the stomach. The digestive system, stomach, the red color one. Okay, you can see the structure, how exactly it is. J-shaped muscular bag that stores the food you eat, breaks it down into tiny pieces. Okay, J-shaped दिखाई देता है आपको प्रॉपर से, J शेप है ये। ओके, मस्कुलर बैग है, पूरा मसल का बना हुआ है, और यहाँ पे स्टोर करके फूड रखता है, यानी 3 से 4 या 5 घंटे, सॉरी 3 से 4 घंटे तक फूड यहाँ पे स्टोर रहता है। ब्रेक्स डाउन मीन जैसे मिक्सर में हम चलाते हैं वैसे ब्रेक डाउन नहीं, मोलिक्यूल्स का मैक्रो टू माइक्रो मोलिक्यूल्स में उसका डिवाइड करना है। जैसे कि हमने प्रोटीन खाया तो उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पार्टिकल्स में करना, ताकि वो बाद में एब्सॉर्प्शन के लिए हो जाए। इसलिए यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं तो अपना पेट, वहां पे कुछ दांत वगैरह नहीं रहते उसको फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए, बस मिक्स करेगा और मोलिक्यूल्स को डिवाइड करेगा। जो ऑलरेडी ब्रेक डाउन फूड है उसमें से वो मैकेनिकली, जैसे कि हमें आंखों में दिखाई देता है, पीसता नहीं है, जैसे चक्की आटा में पीसता है वैसे नहीं है। तो ब्रेक डाउन मीन्स मोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है, नॉट फूड पार्टिकल्स। सो जो भी हमें च्यू करके फूड खाना है माउथ से खाना है, एक बार पेट में गया तो उसी साइज एंड शेप का रहेगा, लेकिन बस जो उसको पार्टिकल्स दिखते हैं उसको
फर्दर मोलिक्यूल्स में डिवाइड करेगा, नॉट फूड पार्टिकल्स। ये आपको क्लियर करना होगा। Then mixes food with digestive juices that contains enzymes to break down proteins and lipids. Digestive juices जैसे कि पेट जो स्टमक का वॉल रहता है उसमें डाइजेस्टिव जूसेस सारे सिक्रेट होते हैं। इसमें HCl भी रहता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिडिक है। जो भी आप फूड खा रहे हो पहले इंटेस्टाइन या बाकी अदर ऑर्गन्स तक पहुंचाने से पहले HCl क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारेगा और पूरा फूड को स्टेराइल कर देगा। वो स्ट्रॉन्ग एसिड में वो ब्रेक डाउन होगा। देन जो वॉल रहता है स्टमक का, वहां पे डाइजेस्टिव जूसेस रहता है। वो फर्दर क्या करता है, जो एसिड HCl है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, क्योंकि HCl भी सीक्रेट हो रहा है। तो ये सब डाइजेस्टिव जूसेस में आते हैं। मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस दैट कंटेन्स एंजाइम टू ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड लिपिड्स। Acid HCl in the stomach renders the organisms harmless. Food found in stomach is called chyme. इसको जो फूड बॉलस फॉर्म में जो एक गाढ़ा सा फूड बनता है, सेमी सॉलिड फूड बनता है, उसको बोलते हैं काइम, सेमी सॉलिड फूड। और उसके साथ जो जूसेस मिक्स हुए हैं उसको पूरा मिला के बोलते हैं काइम। यहाँ पे आप स्टमक का थोड़ा सा पार्ट्स भी देख सकते हैं। ये फंडस, ये आप देख सकते हो इसोफेगस का जो ओपनिंग है ना, यहाँ से इससे लेवल पे ऊपर है। यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे गैस थोड़ा सा ऊपर आता है। यहाँ से जो भी फूड है मीन्स यहाँ पे अटका रहेगा गैस, जो यहाँ पे बन रहा है वो। देन है ये, इसके पीछे ही यहाँ पे हार्ट रहता है, तो यहाँ पे इसलिए बोले कार्डियक नॉच, या यहाँ पे कार्डियक स्पिंक्टर रहता है। ये स्पिंक्टर ऐसे रबर की तरह टाइट रहता है यहाँ पे। अगर आपने फूड खाया, यहाँ पे एक बार फूड आया तो ये फिर से क्लोज हो जाता है, ताकि आप उल्टा फुल्टा भी हो जाए तो फूड ऐसे ऊपर नहीं जाता है। ये कार्डियक स्पिंक्टर की वजह से टाइट होता है और यहाँ पे फूड अंदर ही बना रहता है। देन दिस इज टोटली होल बॉडी, and then antrum and pylorus end portion, tail portion of the stomach। और यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम पार्ट शुरू हो जाता है। क्लियर? ओके, आपको क्लियर हो रहा है? यस नो कुछ बोलो ताकि हाँ हम जी, yes, Yes, yes. yes, ma'am. ओके, थैंक यू। चलो नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा है? इतना लंबा लग रहा है, ये तो पूरा है ना, और इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं? बिकॉज डायमीटर के वजह से। इसका डायमीटर छोटा है और इसका डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन का बिग है, और इसका डायमीटर छोटा है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन डायमीटर के ऊपर बताया गया है, नॉट लेंथ वाइज। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन आर रफली 7 मीटर्स लॉन्ग। उसमें भी कैसे 3 पार्ट रहता है, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। ये इतना पार्ट जो है ये है डिओडिनम। देन इसके हाफ पार्ट यहाँ तक है जेजुनम एंड देन इलियम। ऐसे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वॉल्स हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई टू इंक्रीज सरफेस एरिया। उसमें कैसे रहता है, अभी ये वॉल है इसका इंटेस्टाइन का, तो इसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा कि इतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा। इसको अगर लंबा करोगे तो कितना सारा सरफेस मिलेगा ना, और ये देखो इतना ही सरफेस। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसीलिए रहते हैं ताकि वो एब्सॉर्प्शन के लिए एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट करे, है ना। दिस इज द मेन फीचर of the small intestine, finger-like projections. The villi are covered in microvilli, which further increases the surface area for absorption. इसमें भी कैसे रहते हैं, अभी एक विला ये है तो इसमें भी ये ऐसे ऐसे विलाइज रहते हैं ताकि और फर्दर एब्सॉर्प्शन का पूरा एरिया इंक्रीज हो जाए। यहाँ पे देख सकते हो
स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड पासेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा तो वो पूरा एब्सॉर्ब करने लगेगा। मेन एब्सॉर्प्शन का पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप क्या क्या एब्सॉर्ब करता है। 80% इंजेस्टेड वाटर, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब यहाँ पे सब एब्सॉर्ब करता है। सीक्रेट क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यहाँ पे भी काफी अमाउंट में डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट हो जाते हैं। जो भी कोई फूड स्टमक में डाइजेशन नहीं हो पाया उसका, वो यहाँ पे होता है। ओके, क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Then we see the large intestine. This is large intestine. Diameter के ऊपर इसका पूरा डिवाइड किया गया है, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इट्स अबाउट 1.5 मीटर। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कितना था? 7 मीटर्स का था 7. स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज 1.5 मीटर। एक्सेप्ट व्हाट स्मॉल इंटेस्टाइन डोंट एब्सॉर्ब। ये क्या करता है? जो भी एब्सॉर्ब हुआ है प्रॉपर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो भी बचा कुछ वेस्ट है पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। और यहाँ पे भी थोड़ा और भी उसमें से कुछ बचा कुछ हो तो हम प्रॉपर से, जैसे कि हमने चलनी से पूरा कोई एक दूध वगैरह एक किया, या कोई दूसरा जैसे कि जूस हम उसमें से छान रहे हैं, लेकिन हम उसमें से भी नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे? मसलिन क्लॉथ लोगे और उसमें से पूरा निचोड़ के, पूरा चूस के निचोड़ के उसमें से जो भी है जूस निकालोगे और वेस्ट डालोगे। उसी टाइप यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा, और बचा कुचा जैसे कि मसलिन क्लॉथ से हम करते काइंड ऑफ पूरा निचोड़ लेगा यहाँ पे वेस्ट जो भी है। देन रेक्टम में फूड आएगा। शॉर्ट टर्म स्टोरेज विच होल्ड्स feces before it expelled. This is rectum. ओके, यहाँ पे जो भी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे feces कलेक्ट हो जाएगा, और डिपेंड्स 2 times और once a day ये बाहर डिफिकेट कर देगा, जैसे कि अर्ज अपन को आए। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन क्या है? रिकवरी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर्मेशन and storage of feces. This is rectum and this is anus. Their fermentation, यहाँ पे जो भी फूड बचा कुछ फूड रहे यहाँ पे फर्मेंटाइज होता है, इसलिए फर्मेंटेशन के टाइम गैस पैदा होती है। तो ब्लोटिंग ऑफ द एब्डोमेन वगैरह किसके वजह से होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ लेफ्ट ओवर फूड। देन बैक्टीरियल डाइजेशन, यहाँ पे पूरा बैक्टीरिया का डाइजेशन हो जाता है। फैट का एब्सॉर्प्शन, जो भी बचा कुचा फैट है, फैट का एब्सॉर्प्शन वहां पे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल्स, विटामिन सब वहां पे होते हैं। फैट का इस यहाँ पे हो जाता है। मोस्ट ऑफ द फैट एब्सॉर्ब्स हियर। देन विल सी द एक्सेसरी ऑर्गन्स, द ग्लैंड्स। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि जो मेन पार्ट जहां से फूड पास हो रहा है वो कौन से हैं? माउथ से आएगा इसोफेगस से जाएगा फिर स्टमक में, स्टमक से फिर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। उसका ये एक पाथवे है, लेकिन ये पाथवे से साइडवेज में है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं। ऐसे कौन से है? एसेसरी ग्लैंड्स उसको बोलते हैं। ओके, फर्स्ट इसमें है, इस स्लाइड में नहीं है, माउथ में रहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 pairs ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं अलग अलग। जैसे कि हमें बचपन में कभी सुना होगा कि मराठी में गलगुंड बोलते हैं। कान के नीचे यहाँ पे सूज जाता है ना एकदम से, बचपन में बहुत बार अब होता था, फिर डॉक्टर दवाई देते थे। टंग के नीचे 2 रहते हैं, 2 पैर, और कान के नीचे और दोनों दांतों के ऐसे साइड पे, वहां पे ऐसे पूरा टोटल 3 pairs ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं। वो माउथ में जब फूड च्यू करते हैं उस टाइम पे वो सलाइवा मिक्स होता रहता है। देन सेकेंड वन इज लिवर, नॉट अ पार्ट ऑफ फूड बट प्ले अ क्रिटिकल रोल। ओके, इंक्लूड्स लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज एंड आल्सो सलाइवरी ग्लैंड्स इसमें नहीं है। ओके, plays key role in secreting digestive juices. ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये है
लीवर, इसमें भी 2 लोब्स रहते हैं लीवर के, और लीवर ही बाइल सिक्रेट करता है एंड स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बस स्टोर का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, बाइल को स्टोर करने का। ओके, यहाँ पे ग्रीन वाला देख सकते हो आप, ये बस स्टोर करने का काम करता है। ये फिर यहाँ से और पैनक्रियास का एक डक्ट, ऐसे दोनों मिला के ये डिओडिनम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे स्टमक का ये खत्म होता है और यहाँ से डिओडिनम स्टार्ट होता है। यहाँ पे फिर ये पैनक्रियास का जो भी सिक्रेशन है यहाँ पे पोर करेगा, और गॉल ब्लैडर से जो भी आएगा यहाँ पे सिक्रेट करेगा। ओके, और फिर यहाँ से फर्दर प्रॉपर से मिक्स होके फिर जेजुनम इलियम में चला जाएगा, और वहां पे इसके बाद ही ये डिओडिनम पार्ट के बाद ही प्रॉपर एब्सॉर्प्शन का काम हो जाता है। तब तक मेनली यहाँ पे उसका एंजाइम्स के साथ वगैरह मिक्सचर चालू ही रहता है, जैसे स्टमक में होता है। स्टमक के बाद, एक मिनट, हाँ, हेलो हेलो, Yes, ma'am. What happened? एक मिनट, no, I got a call, I thought it's emergency but no problem. Okay, then ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज डिओडिनम पार्ट पूरा ये वाला। ओके, दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस इज पैनक्रियास। पैनक्रियास में भी कैसे रहते हैं, इसमें 2 टाइप के ऐसे जो सेल्स के गट्ठे गट्ठे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सेल्स के 2-3 टाइप्स के गट्ठे रहते हैं। एक रहता है इसमें बीटा सेल एंड एक अल्फा सेल वगैरह ऐसे रहता है। उसमें कैसे होता है, जो एक सेल रहता है बस यहाँ पे डायरेक्ट इसमें से आके जूस सिक्रेट करेगा, और एक जो सेल्स रहता है वो इंसुलिन सिक्रेट करेगा और डायरेक्ट ब्लड में जाएगा वो। और ये अलग, पैनक्रियास के 2 फंक्शंस है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्ट वो जूस या एंजाइम सिक्रेट करता है, और एक रहता है वो डायरेक्ट इंसुलिन सिक्रेट करके ब्लड में छोड़ देगा। ओके, क्लियर, इसके 2 फंक्शंस है। और लिवर, इसके तो 100s टुगेदर इतने फंक्शंस है, बहुत इसका फंक्शंस है। देखेंगे लीवर के कौन से फंक्शंस है। यहाँ पे लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ओके, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सी है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सी है? Maybe It may- small intestine. No, it may come in your exam. liver से It's okay. Mute yourself. It's getting sound. Okay. The skin is the largest organ, and in the gland, liver is the largest organ. Okay. They may ask in exams. Okay. Largest organ is skin, and largest gland is liver. Okay. Directly affects digestion by producing bile secretes into the small intestine. ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा, अपने जूसेस सीक्रेट करेगा, जैसे कि हमने देखा था डिओडिनम में। इससे स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना, मैडम तो ये स्किन ऑर्गन है क्या? क्या? स्किन इज एन ऑर्गन? यस यस, ऑर्गन। ओके, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है हमें, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको हम प्रणीता प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, तो ये डिओडिनम में यहाँ पे ये जो सिक्रेट कर रहा है लिवर, यहाँ से सब पूरा सिक्रेट कर देगा। ओ गॉड, आई एम अनेबल टू मेक इट स्मॉल वन। यस, ओके, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें मेन मेटाबॉलिज्म, जैसे कि क्या होगा कि एब्सॉर्ब होके फिर से लिवर में चला जाएगा, जो भी एब्सॉर्प्शन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका सारा एब्सॉर्प्शन जाके लिवर में जाएगा, और लिवर में फर्दर उसका जो भी है मेटाबॉलिज्म का काम लिवर में हो जाएगा। बहुत सारे
एंजाइम्स हो, मिनरल्स हो, माइक्रो मिनरल्स वगैरह जो भी रहेंगे एंजाइम्स, ये इसमें सब स्टोर होते हैं। फिल्टर्स आउट टॉक्सिन्स एंड वेस्ट इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड पॉइजन्स। ये सब क्या करता है, यहाँ पे जो भी खाना खाया जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब करेगा और लीवर को भेजेगा। इसलिए यहाँ पे सब जो भी बोलते हैं ना, ये खाओगे तो लीवर डैमेज हो जाएगा, ये गोली वो गोली, इसलिए क्योंकि सारा जो भी एब्सॉर्प्शन होके आएगा लीवर में ही सब स्टोर हो जाएगा, वहीं पे जाएगा, वहीं पे फिल्टर हो जाएगा उसका। इसलिए स्टोरेज भी वहीं पे होता है। इसलिए जो भी आप गलत दवाई लोगे, कुछ होगा, तो वो डायरेक्ट असर लीवर पे ही करता है, क्योंकि वहीं पे जाके स्टोर होने वाला है। क्या होता है, फिल्टर्स आउट टॉक्सिन्स एंड वेस्ट इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड पॉइजन जो भी है। अल्कोहल में तो मेन जो रेगुलर ड्रिंकर्स रहते हैं उनका लीवर ही पहले डैमेज हो जाता है। ओके, लिवर सिरोसिस एंड ऑल। रेगुलेट्स ब्लड क्लॉटिंग, क्लियरेंस ऑफ बिलिरुबिन, जो भी ये सारी चीजें, क्लियरेंस ऑफ बिलिरुबिन ये है कि जब अपना ब्लड ये होता है, ब्रेक डाउन होता है आरबीसी। ओके, आरबीसी जब ब्रेक डाउन होते हैं 90 डेज के बाद, 120 डेज के बाद उसका डेथ होता है, जो फिर ये उसमें से हिम पार्ट एंड ग्लोबुलिन पार्ट वो डिवाइड करते हैं और फिर से जो भी उसमें से जो चीजें वापस अपने बॉडी में लेनी है वो उसका सब मैकेनिज्म लिवर में होता है। तो बिलिरुबिन क्लियरेंस का काम ये करता है, उस प्रोसेस में ये बिलिरुबिन तैयार होता रहता है आरबीसी के ब्रेकडाउन के टाइम। ओके, एंड लिवर इज क्लियर, उसके बहुत सारे फंक्शंस है एक्चुअली, शॉर्ट में हम देख रहे हैं। जो भी स्टोर करना है या जो भी टॉक्सिन्स बाहर फेंकना है, ये सब लीवर का काम है। इसलिए बोलते हैं जब हमें बॉडी डिटॉक्सिफाई करनी होती है तो मेन कौन सा ऑर्गन फर्स्ट डिटॉक्सिफाई होना जरूरी है या होता है, जब डिटॉक्सिफाई करते हैं लीवर जब डिटॉक्सिफाई हो जाएगा अपने आप प्रॉपर से हेल्थ रिकवर होना चालू हो जाएगा, क्योंकि वहीं पे जमा होता है। बाकी तो बस फूड पास हो रहा है हर इसमें से, आप इसोफेगस देखोगे, स्टमक देखोगे, बस एक के बाद एक फूड पास होते जा रहा है, यहाँ पे कहाँ पे भी स्टोरेज नहीं है। तो स्टोर हो रहा है लीवर पे। अगर लीवर पूरा क्लियर हो गया, प्रॉपर डिटॉक्सिफाई हो गया, तो अपने आप सारे प्रॉब्लम्स वगैरह क्लियर होने लगते हैं। एंड लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मिनिमम 16 आवर्स का गैप रहना चाहिए फूड में। लास्ट डे पे जो फूड खाया है वो एंड नेक्स्ट डे जो खा रहे हैं उसमें से 16 आवर्स का गैप रहेगा, तो बॉडी को पूरा रेस्ट मिलता है ताकि लीवर को डिटॉक्सिफाई कर पाए। देन गॉल ब्लैडर, यहाँ पे देख सकते हो आप, दिस इज गॉल ब्लैडर। यहाँ पे लिवर में ये बाइल सिक्रेट होगा और फिर से ये बाइल यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। जब कभी गॉल ब्लैडर का सर्जरी होती है, गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं, उसमें स्टोन वगैरह हो जाते हैं, तो ये बाइल डक्ट यहाँ से कट करके गॉल ब्लैडर रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से फिर से इसका बाइल छोड़ना मैकेनिज्म जो फंक्शन है चालू ही रहता है, ये बंद नहीं होता है। बस ये स्टोर करने वाला ऑर्गन निकाल के फेंकते हैं हम। ओके, जैसे स्टमक आप थोड़ा सा देख सकते हो, और ये यहाँ से ये आके दोनों पैनक्रियाज और इसका डक्ट होके यहाँ पे डिओडिनम में एक साथ ज्वाइन होके आ रहा है। प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाइल, मेनली स्टोरेज ऑफ द बाइल, ओके, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाइल। बाइल ब्रेक्स अप द फैट, मेनली बाइल का काम क्या है, फैट को ब्रेक डाउन करना। ड्रेन्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लिवर इनटू डिओडिनम, ये क्या करता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है लिवर में बचे हुए वो भी यहाँ पे आके स्टोर होते हैं। जब भी इसको एम्प्टी करना होता है उसके साथ वो एम्प्टी करते रहते हैं, इसलिए ये बस स्टोर करता है। फिर भी इसमें कभी कभी गॉल ब्लैडर स्टोन वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है वो यहाँ पे आके जमा हो रहा है, फिर जमते जाएगा, टाइम पे वो क्लियर नहीं हो जाएगा, तो वो यहाँ पे सब जमते जाएगा और स्टोन्स बन जाएंगे। फैटी डाइट्स, excessive of cholesterol, bilirubin और bile salts can cause gallstones. Okay, जो gallstone जैसे हमारे किडनी स्टोन रहते हैं उस टाइप के नहीं रहते, ये फैट कलेक्शन, जैसे कि हमने ऑयल का बर्तन बहुत टाइम तक धोया नहीं या चिकना चिकना हो जाता है, जैसे कि एक सॉफ्ट भी लेकिन एक चिकना चिकना
जैसे हो जाता है, एक जम जाता है ना, उसके ऊपर परत, उस टाइप का ये बहुत गाढ़ा, उसी टाइप का, नॉट लाइक हार्ड स्टोन जैसे कि किडनी स्टोन में होता है, वैसे ये जमा हो जाता है यहाँ पे, फैटी फैटी रहता है वो। इसलिए जो फैट एक्सेसिव फैट डाइट जिनका रहता है उनको ज्यादा ये अफेक्ट करता है, एंड आफ्टर 40 इयर्स तो ये ज्यादा अफेक्ट करता है। यक फॉर फैट 40 एंड फीमेल्स, इनमें ज्यादा रहता है। Then we will see the pancreas. This is pancreas, kind of pan. You can correlate like this. Okay, pancreas. It has two functions, exocrine and endocrine. Exo यानी where ducts produces digestive enzymes to digest fat, carbohydrates and proteins. ये ducts के through क्या करेगा, अपना secretion ये करेगा। एंड एंडोक्राइन, इसमें क्या है, एंडो मीन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड फ्लो, डायरेक्टली टू द ब्लड स्ट्रीम, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल्स लाइक अल्फा एंड बीटा सेल्स। ओके, यहाँ पे एक्सो मीन्स ब्लड स्ट्रीम को कोरिलेट करके इन्होंने ये बोला है, ब्लड में जो डायरेक्ट सिक्रेट करेगा उसको बोलेंगे एंडो, ओके, और जो बाहर ब्लड के बाहर करेगा, ओके, उसको बोलेंगे एक्सो। ये डायरेक्ट इसको डक्ट चाहिए, जहाँ पे भी ग्लैंड से और ग्लैंड्स के थ्रू डक्ट से एक दूसरी जगह पे वो हार्मोन्स या एंजाइम सिक्रेट होके जा रहे हैं, उसको बोलेंगे एक्सोक्राइन। एंड एंडोक्राइंस डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, दैट इज एंडोक्राइन। एंडोक्राइन के ऊपर अपना एक सिस्टम पूरा है, उसमें भी आपको पता चलेगा एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। तो ये पैनक्रियास के दो फंक्शन है, एक डायरेक्ट सिक्रेट होके यहाँ पे आएगा, और जैसे इंसुलिन है ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट करेगा। ओके, ओके, एक्चुअली जो वीडियो है इसका कैसे फूड पास हो जाता है वगैरह, ये हम नेक्स्ट सेशन में प्रॉपर से दिखाऊंगे, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का भी, आप पहले ये क्लोज कर देना रिकॉर्डिंग।